Good evening, everyone. Welcome to the first class of Lead House. Let us look at today's challenge. So today's challenge was these emotions were given to the students and they were asked that they have to find out their emotional status at particular time. So the timing were given them like this: 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 3 p.m. And they were asked that how they were feeling at this moment, like 9 a.m., 11 a.m., 1 a.m., 1 p.m. and 3 p.m., how they were feeling. So before we move further, let me invite the participants to express their views that what exactly they were feeling at these 4 timings that is given. So yes, Farheen, please go ahead and you express. Good evening all, it's me Farheen Idrisi. Now today's challenge. Firstly, I felt cheerful in the morning because today's holiday in 9 a.m. Second is 11 a.m. Serenity. I felt serenity because I was studying for the exam alone in the room. 1 p.m. Passion. I felt fashionable because I just had to remember all about the exam. I prepared the exam. 3 p.m. Amusement because I saw the TV with my brothers and sisters. Thank you. That's very good, Mariam. Well presented. Wonderful. Yes, now Asna, you please go ahead. Good evening, everyone. It's me, Asna, and I'm gonna tell you how I felt at those particular times. At 9 a.m., I was feeling really calm and concentrated because I was doing my homework, I was studying, and at 11 a.m., I took a rest from the studying, so I was feeling relaxed and peaceful. At 1 p.m., I was getting ready, like I was going to my school, so I felt happy and excited. And at 3 p.m., I was in the school and there was lunch going on. So I was playing, so I felt joyful and cheerful. Lovely, 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 Asna. Very good. Very good. Wonderful. Now, Mariam Ansari. This is my emotion today. At 9 a.m., I am feeling very joy and happy because I ate breakfast with my choice, and at 11 p.m., I am amused and satisfied because I am studying at the time, and 1 p.m., I am very excited, and 3 p.m., I am normal. Normal is no emotion. What is normal emotion? You tell me. Normal. I don't have any emotion. No, it is not possible that anytime you don't have any emotion. Normal may be blood pressure. That blood pressure is normal, not high, not low. But emotion, we are going through the emotions all the time. There is no time where we are without emotions. You have to just find out that what was. Maybe you were calm, maybe you were quiet, maybe you were I'm quiet. into deep thought or these type of things. Okay. Very good, Mariam. Thank you very much. Now, Alicia, over to you. Alicia? Alicia, are you there? Okay, Kulsum Fatima, over to you. Because my brother was annoying and anything at that time, I was happy because my annual examination was making some crafts, and so I was happy. At 1 p.m. I was satisfied with my works, and at 3 p.m. I was joyful. Okay, Kulsum, thank you. Your network here has some problem. I think you can find a place in the house where your network is like better and where we can hear you nicely.
Okay, so Ishan, would you like to share your emotions? Yeah, sure. Yes, please go ahead. Okay. Good evening, everyone. I'm Ishan Ahmed. So at 9 a.m., I was in afraid and confused because and today I had my last Hindi exam. I was afraid and confused what will it be I can do or not. At 11 a.m. I was feel nervous and just because I had done my all chapters. Perhaps I'm nervous. What I will do now? What will be? At 1 p.m. interest and joyful because I get my Hindi paper and fully I can do it. I'm so enjoyable. And also I knew that I get 98 out of 100 in my annual maths exam. And also at 3 p.m. I was in bored and upset because I have done my exam. I came at 2:30 a.m. I don't know what I have to do that time. Thank you. Wonderful, wonderful, Ishan. Thank you very much for sharing. So that was really a nice experience to listen to you. रिंकी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? रिंकी कुमारी, क्या आप अपने इमोशंस बताएंगी? मैम अभी हम ज्वाइनिंग किए तो हमको नहीं पता कि किस टॉपिक में हो रहा है, तो रिंकी, ये बताइए कि आपने ग्रुप में आज का चैलेंज देखा? क्या चैलेंज दिया गया था? मैम देखे थे लेकिन क्या? हमको समझ में नहीं आया था। मैंने तो हिंदी में बोला था, इसीलिए सिर्फ आपकी वजह से ही हिंदी में बोला था, तब भी आपको समझ में नहीं आया? नो मैम, हमको लगा ना कि मतलब आज क्लास नहीं होगा, हमको लगा कल से स्टार्ट होगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम 8 बजे शाम में मिलेंगे, तो आप ऐसे कैसे कर सकती हैं आज नहीं क्लास होगा बेटा? तो मैम आज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो इसीलिए पापा का नंबर से वाईफाई कनेक्ट किए, तब सर बोलने जुड़ने के लिए तब जुड़े। वो तो सही है, लेकिन आपको जो है वो चैलेंज तो करना था ना। चैलेंज का तो नेटवर्क से कोई काम ही नहीं था, चैलेंज तो आपको घर में करना था। यस मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडेज चैलेंज, जैसा कि आप सबने ये रिक्वेस्ट किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक को लिया जाए, तो आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही एक्टिविटी करेंगे। तो आपका चैलेंज ये है कि आपकी स्क्रीन पे जितने भी इमोशंस लिखे हुए हैं, ये वो हैं जिसे हम फील करते हैं। ये एक लिस्ट है सारे इमोशंस की। कभी हम लव करते हैं, कभी फियर, कभी एंगर, कभी सैड, कभी सरप्राइज, कभी जॉय, कभी हम बहुत प्राउड फील करते हैं, कभी चीयरफुल, कभी हैप्पी, कभी इरिटेटेड, कभी एनवी, कभी डिस्गस्ट, कभी हम बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, कभी ग्रीफ में होते हैं, कभी लोनली फील करते हैं, कभी एग्नी फील करते हैं, कभी हम इंफीरियर फील करते हैं, कभी वरीड होते हैं, कभी इन्फैचुएशन होता है, कभी पैशन होता है, कभी हम रोमांटिक हो जाते हैं, कभी हम बहुत ही जेलस होते हैं, कभी एक्साइटेड होते हैं, कभी होपफुल होते हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारे इमोशंस हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा चैलेंज दिया है, क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए बहुत ही आसान सा चैलेंज दिया है, और वो ये है, देखा आपने, सुना क्या कहा गया है कि आज पहला दिन है। मैं यही आपको सुनाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को प्ले भी किया है कि आपको अपने ऊपर गौर करना है, और आपको यहाँ पे जो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल पे आपको ये लिखना है कि 9 बजे आप किन इमोशन से दो चार हो रहे थे, 9 बजे आपके क्या जज्बात थे आपके। उसके बाद फिर 11 बजे लिखना है कि आप किन इमोशंस में घिरे हुए थे। फिर 1 बजे गौर करना है अपने ऊपर और लिखना है कि 1 बजे आप कौन से इमोशन से गुजर रहे थे। फिर 3 बजे आपको गौर करना है और 3 बजे लिखना है कि किन इमोशन से गुजर रहे थे। तो ये 4 टाइम है, 4 टाइम में आपको अपने इमोशंस यहाँ पे लिखने हैं, जो भी आपके इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं। उसके बाद ये करने के बाद आप इसको एक डायरी ले सकते हैं या पेपर और पेन ले सकते हैं, उस पे आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं और उसमें अपनी हैंडराइटिंग में आप लिख सकते हैं। और इसे आपको लेकर के 8 बजे आना है। 8 बजे रात में हम
हमारी क्लास अब देखो क्या कहा गया है कि इसे ये टास्क करके 8 बजे रात में आना होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को काबू में रख सकते हैं, कैसे इमोशंस से हम का इस्तेमाल इस तरह करें कि हम कामयाब जिंदगी गुजारें, किस तरह से हमारे इमोशंस हमारी जिंदगी में काम आते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हम शाम की क्लास में आपको बताएंगे, जो आपकी जिंदगी के लिए मुफीद होंगे। और 8 बजे क्लास होगी जूम पे। जूम का लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं शामिल हुए हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद फिर हमारी क्लासेस आप अटेंड करते रहिए। तो सी यू इंशाल्लाह एट 8 PM tomorrow and thank you very much. I hope that you all are going through with very positive emotions. Take care and bye-bye. तो रिंकी कुमारी, अब आपको समझ में आ गया कि क्या होमवर्क था, तो क्या आप कर सकते हैं? अभी आप बता सकती हैं कि किन इमोशन से आप गुजर रहे थे आज? यस मैम, बता सकते हैं। जी बताइए। पहले तो सब लोग वीडियो ऑन करो, क्योंकि जब तक शक्ल नहीं दिखाई देती है, जब तक किसी से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। स्विच ऑन योर वीडियो। आतिका, रिंकी, यस मैम। Ma'am, there is no lights in my home, so I cannot open the camera. ओके। चलिए रिंकी बताइए, अपने इमोशंस बताइए। मैम, जो मॉर्निंग का टाइम था जी। उसमें हम ज्यादा खुश नहीं थे, मतलब मेरे इमोशन थोड़ा बहुत सैड में थे। हम्म। और और क्या था? 11 बजे क्या था? 11 बजे मतलब हैप्पी में थे बहुत, उतना ज्यादा में नहीं थे। और 3 बजे क्या था? 3 बजे पूरा सैड थे। और 5 बजे? 5 बजे भी सैड थे थोड़ा थोड़ा। तो आपकी जिंदगी में सैडनेस ज्यादा नजर आ रही है खुशी के मुकाबले में, क्या बात है? आज मैम मतलब आज का दिन ही ऐसा था, इसीलिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, ठीक है? अगर हम अपने अंदर जो हमारे फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को अगर हम समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, उन फीलिंग्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम उन फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है वो सीख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। जैसे कि अभी रिंकी की मिसाल लें कि उन्होंने कहा कि आज का दिन ही ऐसा था, यानी कि उनके दिन में सैडनेस ज्यादा थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने सैड इमोशन को एनकाउंटर किया तो वो ये नहीं समझ पाई कि इस सैड इमोशन को हमें कैसे मैनेज करना है, और कैसे मैनेज करके हमें अपने आप को मोटिवेट करना है फर्दर हैप्पीनेस की तरफ, फर्दर जॉय की तरफ, खुशी की तरफ। तो इस वजह से उन्हें ये लगा कि आज का दिन ही ऐसा था कि आज का दिन ही उनका सैडनेस में गुजरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिंकी कुमारी का इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई स्ट्रांग पर्सन होगा, इमोशनली स्ट्रांग, वो क्या करेगा कि सैड इमोशन को भी, सैड सिचुएशन को भी वो अपने तौर पे अपने आप को इतना पुश करेगा कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन से लड़ना है, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे इस सिचुएशन को पावरफुल बनाना है। तो वो उस सिचुएशन को पावरफुल बनाएगा, अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, ठीक है? तो अगर हम, सबसे पहले तो होता है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से इमोशन से गुजर रहे हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम गुस्सा हैं, जबकि वो गुस्सा नहीं होता है, वो और भी डिफरेंट इमोशंस होते हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी इरिटेशन होता है, कभी स्ट्रेस होता है, लेकिन हम हर एक को क्या नाम दे देते हैं कि हम गुस्सा हैं, है ना? तो इसी तरह से जैसे हम खुश हैं, जबकि कभी क्या होता है कि कभी हम चीयरफुल होते हैं, कभी हम प्राइड फील करते हैं, कभी हम अकम्पलिश्ड फील करते हैं, है ना? लेकिन हम सबको क्या कह देते हैं, हम हैप्पी हैं। तो इसी तरह से सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो अगर हम इमोशनल
इंटेलिजेंस या इमोशनल कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो उसमें 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, कि पहले तो खुद को पहचानो, खुद को जानो कि हम सांस कितनी बार लेते हैं 1 मिनट के अंदर, हम कितने ग्राम खाना खाते हैं, हमारे जिस्म में हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना आयरन ले रहे हैं, हम दिन भर में कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दिन भर में कितनी बार सैड होते हैं, कितने बार हैप्पी होते हैं, किन किन इमोशन से गुजरते हैं, हमारे अंदर हमारा स्टेमिना कितना है, हमारा वेट कितना है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारा विल पावर कितना है, हमारा आईक्यू कितना है, हमारा ईक्यू कितना है। तो पहले अपने आप को जानना है, पहले अपने आप को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक खंगालना है कि मेरे अंदर है क्या क्या चीज। उसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जो कि हम सब नहीं करते हैं। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जैसे भी है ठीक है, जो भी है ठीक है। अगर मान लिया कि हम 1 मिनट के अंदर अगर हम 10 स्टेप्स चलते हैं तो कभी हम काउंट भी नहीं करते कि हम 1 मिनट में कितने स्टेप्स चलते हैं, और अगर काउंट भी करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि चलो अच्छा इस 1 मिनट में 10 को मैं 12 कैसे कर लूं, 15 कैसे कर लूं, कैसे बढ़ाऊं अपने स्टेप्स को, कैसे स्टेप ना अपना बिल्डअप करूं। तो हम वो भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद फिर है एम्पैथी। अभी डिटेल में ये सब बातें आपको फिर बताई जाएंगी, अभी मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन देती हूँ। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम खुद को दूसरे की जगह पे रख करके तब सोचें, ठीक है। जैसे आज ही एक टीचर जो है एक बच्ची को लेकर के आए मेरे पास कि ये क्लास में काम नहीं कर रही है और मुझे कह रही है कि हम बात क्यों नहीं कर सकते क्लास में, ठीक है। तो वो बच्ची अलग गुस्सा हो रही है कि मुझे सर मेरे ऊपर येल कर रहे हैं, सर मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो मैं तो उनकी चिल्लाहट सुनने के लिए तो नहीं हूं यहाँ पे। अब वो अलग नाराज होकर कह रहे हैं कि ये मुझे कह रही है कि मैं काम नहीं करूंगी और हम बात क्यों नहीं कर सकते क्लास के अंदर। तो ये जो सूरत हाल आई सामने, ये क्यों आई? क्योंकि ना तो टीचर खुद को स्टूडेंट की जगह रख के सोच रहे हैं और ना स्टूडेंट खुद को टीचर की जगह रख के सोच रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह रख के सोच रहे हैं, इसलिए दोनों में ये जबकलिश हो रही है। अगर एक स्टूडेंट टीचर की जगह खुद को रख के ये सोचे कि अगर मैं किसी बच्चे को काम दूं और बच्चा मना कर दे तो मुझे कैसा लगेगा, ज्यादा तो गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ह्यूमिलिटी फील हो, इंसल्टिंग फील होगी, और ये लगेगा कि जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसी तरह से अगर टीचर भी खुद को बच्चे की तरह रख के सोचे कि उस उम्र में कितना हम लोग बातें करते थे, और बातें करना कितना शौक होता है बच्चों का एक। तो अगर मान लिया कोई बच्चा भी ये कह ही रहा है कि हम थोड़ी सी बात करके फिर करेंगे, तो उस टाइम के लिए हम नर्म भी पड़ सकते हैं, बाद में उसको समझा दें, बाद में उसको बता दें, उनको उस पर चिल्लाने के बजाय। तो अगर हम एक दूसरे की जगह खुद को रख करके सोचेंगे तो उसे हम एम्पैथी कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें आता है इमोशनल इंटेलिजेंस में सोशल स्किल्स, कि हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम कॉर्डियल है कि नहीं है, हम वार्म है कि नहीं है, हमें किसके साथ कितना डिस्टेंस रखना है, किससे कितनी कुर्बत रखनी है, कितना किसके साथ शेयर करना है, कितना नहीं शेयर करना है। वो होता है सोशल स्किल्स, जब हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और फिर इसके अंदर जो चौथा कंपोनेंट आता है वो आता है सेल्फ रेगुलेशन। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है, यानी हाँ कर लेंगे काम, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अरे करते हैं ना, अरे क्या जल्दी है, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ लव। अगर हम सही मानों में खुद को प्यार करते हैं तो सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन करेंगे। एंड देन द लास्ट कंपोनेंट इज मोटिवेशन। अगर आप कभी लोगों को देखेंगे, कुछ लोग हमेशा आपको इतने हशाश बशाश नजर आएंगे, इतने खुश नजर आएंगे, इतना उनके अंदर मतलब कि लाइफ लगेगा कि आपको लगेगा कि हम इन्हीं के साथ रहें, इन्हीं की सोहबत में रहें, इन्हीं की कंपनी में रहें। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। और कई लोग ऐसे होंगे जो मुंह लटकाए हुए, मुंह बसोरे हुए, हर वक्त जैसे रोती शक्ल लेके, मैं तो कहती हूँ कि कब्जशुदा अफराद, ऐसे को कब्जशुदा अफराद समझ गए। यानी कि जैसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कब्ज हो जाता है, तो जब टॉयलेट में जाते हैं तो कैसा मुंह बनाते हैं कब्ज की वजह से। तो कई लोगों को आप देखेंगे कि हमेशा उनका मुंह ऐसे ही बना रहता है। तो मैं उनको कहती हूँ ऐसे कब्जशुदा अफराद से तो मुझे उलझन होती है, मुझे समझ में आता कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा मूड लेकर के, ऐसा मुंह लेकर के, ऐसे खुद को ऑफ फील करा करके, और दूसरों का भी मूड ऑफ कर देते हैं फिर वो। तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि हर वक्त इंसान खुद को एनर्जाइज रखे,
हर वक्त इंसान ये सोचे कि मैं कैसे खुद को आगे बढ़ाऊं और दूसरों को भी आगे बढ़ाऊं। अब उन्हीं बातों को जो हमने आपको समझाया है यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया गया है। ठीक है, कि सेल्फ अवेयरनेस में क्या क्या चीजें हमें अवेयर होना है। तो पहले इमोशनल अवेयरनेस होना है, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट होना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन में अचीवमेंट ड्राइव है, कमिटमेंट है, इनिशिएटिव है, ऑप्टिमिज्म है, एम्पैथी में अंडरस्टैंडिंग अदर्स है, डेवलपिंग अदर्स, सर्विस ओरिएंटेशन, लिवरेजिंग डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन में सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्ट वर्दीनेस, कॉन्शियसनेस, अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन, और सोशल स्किल्स में इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, चेंज कैटलिस्ट, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, बिल्डिंग बॉन्ड्स, टीम कैपेबिलिटीज। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आज हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं बताएंगे कि एक साथ बहुत ज्यादा पॉइंट्स देने से फिर वो सारे पॉइंट्स जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको भेजेंगे ब्रेकआउट रूम में। ठीक है, आप सबको ब्रेकआउट रूम में जाना तो आता है ना। जब आपकी स्क्रीन पे एक शेयर होगा कि गो टू ब्रेकआउट रूम, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्रेकआउट रूम में जाकर के आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपका वहां पे पार्टनर होगा, क्योंकि दो दो लोग जाएंगे ब्रेकआउट रूम में, तो जो वहां पे जो भी आपका पार्टनर होगा, आपको अपने पार्टनर को तीन इमोशंस जो है उसके अंदर पैदा करने हैं। ठीक है, आपको कुछ ऐसा करना है कि उसके अंदर वो तीन इमोशंस पैदा हो। एक है एंगर, ठीक है, एक है प्राइड, ठीक है, और तीसरा है फ्रस्ट्रेशन। कर सकते हैं आप लोग? Yes, ma'am. तो ठीक है, लेट्स गो टू द Repeat the emotion, please. फ्रस्ट्रेशन। तो लेट्स गो टू द रूम। दो दो लोग जाएंगे, मैं दो दो लोगों को असाइन कर रही हूँ, अलीशा एंड असना। ओके, देन दूसरे रूम में आतिका एंड ईशान, देन तीसरे रूम में कुलसुम एंड मरियम, एंड यहाँ पे रिंकी भी है, तो चलो इस रूम में रिंकी को भी। तो अब आप लोग तीनों रूम में जाइए, ब्रेकआउट रूम ओपन। प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। रिंकी, आपकी स्क्रीन पे जो मैसेज आया है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आप ब्रेकआउट रूम में पहुंच जाएंगे। रिंकी, यस मैम। जो आपके स्क्रीन पे मैसेज आया ना, ज्वाइन ब्रेकआउट रूम, उस पे उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप रूम में पहुंच जाएंगे, अलग रूम में पहुंच जाएंगे। एक मैसेज ज्वाइन किए, आया। आया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप रूम में चले जाइए। मैम मैसेज फिर से भेजे तो नहीं आ रहा है।
Okay, so welcome back. Only Alisha and Asna came back. What about others? Ma'am, I think Rinki and Mariam is also there, and also Ishan. Okay. रिंकी तो जा ही नहीं सकी ना, रिंकी तो को तो ज्वाइन करना ही नहीं आया। और इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि हम बाद में फिर आपको दोबारा लिंक भेजें और आप ज्वाइन करो। इसमें तो एक बार जब हम रूम खोल देते हैं, ब्रेकआउट रूम, तो वो जो मैसेज आपकी स्क्रीन पे आता है बस वही होता है, उसी को आपको ज्वाइन करना है, उसी से आपको जाना है। तो ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कामयाब हो पाए अपने पार्टनर को 3 इमोशंस जगाने में? Ma'am, me and Asna. Yes, ma'am. अच्छा Ma'am, me and Mariam. अच्छा कैसे किया, जरा डिमोस्ट्रेट करना मेरे सामने। Ma'am, like I said to Mariam, no any language I started, just start speaking with means Allah bala. So she cannot understand, just she was like, what are you saying? What are you saying? So she get angry, I can say. Okay. And what technique, Alisha, you adopted? Ma'am, me and Asna did the same in most of them. So like in frustration, we thought of our exams and like we have to do so many things. So we were frustrated because of that. In anger, our elder and younger siblings, because of their acts, we were like, we remember them and we were angry. And in pride, we remember the proud movements. So that made us pride. Yeah. Okay, so now I think that for today, we are going to have only this much. What is your responsibility? That you have to make a diary or a notepad or whatever you want. In that, you just write these emotions, like 5 components of the emotions. I will be sharing the video. So from that, you can see this slide that I have shown right now to you. And then from that, you can copy in the notebook. That will be your today's work. And then tomorrow morning, I will give you some other exciting challenge. And that exciting challenge is going to be related to regulation of the emotion. So 2 days we are going to have the emotions, and then rest 6 days we are going to do the communication. I'll be sharing with you. I think I have shared with you already the schedule. Or have I done or not? No, ma'am. Okay. So that I will be sharing right now because I have already made the 1 week schedule and the valedictory function is on 1st March. So today's target is that you have to write these 2 slides that I have shown to you. Those 2 slides you have to copy in the notebook. Okay. I'll be checking your notebook tomorrow in this class, evening class. One more thing, tomorrow's I do not understand. Kya? Ma'am, I am not understand what to do in notebook. जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया अभी उसको लिखना है, उसको कॉपी करना है। आप ग्रुप पर एक बार सेंड कर दीजिएगा। नहीं, मैं ये वीडियो शेयर करूंगी ना, उस वीडियो को आप खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी जो हमने शेयर किया सबका वीडियो बन गया है ना, तो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को देखना, उसमें से फिर नोट कर लेना, ठीक है? नो प्रॉब्लम, ओके। कल की क्लास जो है वो हम लोग 6 बजे करेंगे, क्योंकि ये 8 बजे काफी लेट हो जाता है। आप लोगों में से कितने लोग 6 बजे कंफर्टेबल हैं अटेंड करने में? आई एम कंफर्टेबल। मैम मैं जस्ट अभी स्कूल से वापस आती हूँ। Ma'am, 7 o'clock is better, I think. Yes, ma'am. 7 o'clock is better? Yes, ma'am. यस मैम। मैम 8 o'clock। आप तो ऐसे भी नहीं आई, 8 o'clock भी नहीं आई, आपका क्या शुमार है ये बताइए? आप तो 8 o'clock भी नहीं आई जैनब। चलिए ठीक है, कल 7 पे करके देखते हैं, ट्राई करके कितने लोग आ पाते हैं, ठीक है? सो टुमारो वी सी यू ऑल एट 7 o'clock. I hope you enjoyed the class. Thank you very much, everyone. Take care. Good night. Bye-bye. गुड